discuss about the principles of management. So principles of management are suggested by Henry Fayol, and he has given 14 principles. Okay, we will discuss one by one. First is division of work. So according to Fayol, the total task or the entire task should be divided into compact or small jobs, and this should be allocated to different persons so that they can do that job or they can perform that task efficiently. Okay, and they can concentrate on that particular job which has been assigned to them. जो वर्क उनको दिया गया है वो उसी पे फोकस कर पाए, and in that way their efficiency will also increase. Okay, so number 2 is authority and responsibility. Second principle he has suggested, that is authority and responsibility. What is authority, children? Authority means it is the right to get the work done from others. दूसरों से किसी से भी कोई काम करवाना, ठीक है, करवाने का जो राइट होता है, that is called as authority. Right to get the work done from others. And what is responsibility? Responsibility means the obligation to perform that task. जो टास्क हम लोगों को असाइन किया गया है, जो वर्क हम लोगों को दिया गया है, उसको करने का एक ऑब्लिगेशन बन जाता है वंस इट हैज़ बीन गिवन टू अस. हम लोग कहीं पे भी काम कर रहे हैं तो हम लोगों को कुछ टास्क, जैसे हम लोगों के एम्प्लॉयर जो हैं या तो जो टॉप लेवल में हैं, इफ़ दे हैव गिवन एनी टास्क, हम लोगों को उसको करना ही करना है. मीन्स दैट बिकम्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूरिंग दैट टाइम. ठीक है, हम लोग मना नहीं कर सकते कि हम लोग ये काम नहीं करेंगे. सो that is responsibility, obligation to do the assigned task. Okay, and authority and responsibility go hand in hand. Okay, they are coexistence. Also coexistence means एक को छोड़ के दूसरे का कोई भी existence नहीं बनता है. Authority without responsibility leads to irresponsible behavior. Authority है but responsibility नहीं है तो क्या उसको irresponsible बोलेंगे हम लोग. ठीक है, and responsibility without authority will make a person ineffective. किसी को भी, किसी के पास responsible है कोई एक इंसान but उसके पास authority नहीं है, means he cannot perform that task. Okay, therefore there should be parity between authority and responsibility. दोनों के बीच में एक balance होना चाहिए. ठीक है. Next principle given by Henry Fayol is discipline. Discipline means it implies obedience, respect of authority and observance of the established rules and regulations. जो भी rules and regulations कंपनी के हैं उसको मानना, ठीक है, उसको respect करना. So discipline is essential for the smooth running of any organization, any enterprise. कहीं पे भी discipline जरूरी है. Okay, so that's why he has suggested that good discipline at all levels. Okay, clear and fair rules and build up system of penalties means जहाँ पे रूल कोई ब्रेक कर रहा है जैसे वहाँ पे पेनल्टी का भी सिस्टम रहेगा. दैट विल हेल्प टू मेंटेन डिसिप्लिन. नहीं तो रूल्स एंड रेगुलेशंस तो बना दिए, अगर पेनल्टी नहीं है तो बहुत बार जैसे हम लोग रूल्स भी तोड़ते हैं. सो कॉमन एग्जांपल जैसे हेलमेट का हम लोग ले सकते हैं. ट्रैफिक पुलिस का जो रूल है उसको भी हम लोग तोड़ देते हैं. बहुत बार हम लोग हेलमेट पहन के नहीं चलते हैं या तो लाइसेंस नहीं होता है. एज मीन्स वो रूल बना हुआ है बट स्टिल दैट इज बीइंग नॉट फॉलोड बाय द पीपल. ठीक है, सो इसीलिए वहाँ पे पेनल्टी भी रखा गया है. लाइक दैट इन एन ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो देयर शुड बी पेनल्टी फॉर ब्रेकिंग द डिसिप्लिन. अगर कोई ब्रेक कर रहा है, डिसिप्लिन नहीं फॉलो कर रहा है, देन देयर शुड बी पेनल्टी. Next principle which he has suggested, that is unity of command. So unity of command means according to this principle an employee should receive orders and instructions from one superior only. So जो एक employee है, कोई भी एक employee एक ही employer से, एक ही boss से जैसे जो भी orders instructions वो receive करेगा and he will be accountable to him only. तो एक ही इंसान को अकाउंटेबल हो रहा है. सो दैट रिजल्ट्स इन नो कन्फ्यूजन. ठीक है, अगर एक ही इंसान से वो सारा ऑर्डर्स ले रहा है, ही इज डुअल सबऑर्डिनेशन रिजल्ट्स इन कन्फ्यूजन. ओके, सो दिस इज कॉल्ड यूनिटी ऑफ कमांड.
Next is unity of direction. So what is unity of direction? According to this principle, there should be one head and one plan for a group of activities having the same objective. एक ऑब्जेक्टिव जहाँ पे एक कॉमन ऑब्जेक्टिव है, सो देयर शुड बी वन हेड एंड वन प्लान. एक हेड होंगे एंड एक ही प्लान होगा फॉर ए पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज. ठीक है, जैसे मार्केटिंग का या तो कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट का कर रहे हैं, सो एक ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज जैसे हो गया, सो एक वहाँ पे हेड होंगे एंड देयर शुड बी वन प्लान ऑल्सो. ओके, दैट इज कॉल्ड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन एंड यूनिटी ऑफ कमांड में जैसे डिफ्रेंशिएट बहुत बार आता ही है. इट कैन कम एज अ 2 मार्क्स क्वेश्चन ऑल्सो. सो फर्स्ट पॉइंट में जैसे हम लोग मीनिंग लिख सकते हैं. यूनिटी ऑफ कमांड मीन्स वन सबऑर्डिनेट और वन एम्प्लॉई शुड रिसीव ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम one superior only and he will be accountable to him. And unity of direction means there should be one head and one plan for a group of activities having the same objective. Next, second point what you can write, that is unity of command relates to the functioning of people. Okay, means the subordinate and superior they are involved. एक subordinate एक superior से जैसे orders ले रहा है उसी को accountable हो रहा है, so it relates to functioning of people. And unity of direction that is related to grouping of activities. कोई भी एक particular group of activities के लिए जैसे एक head और एक plan रहेगा, ये हम लोग discuss कर चुके हैं. So this is the difference between principle of unity of command and unity of direction. Next principle is subordination of individual interest to general interest. So an organization is bigger than an individual. कोई भी एक organization एक इंसान से, उसका मीन्स कोई भी एक एम्प्लॉई है, सो एम्प्लॉई के इंटरेस्ट से ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को प्रायोरिटी दिया जाता है, दैट इज प्रायोरिटाइज. सो द इंटरेस्ट और गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट प्रिवेल अपन द पर्सनल इंटरेस्ट. मीन्स पर्सनल इंटरेस्ट को ऊपर ना रखते हुए पूरे ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को जैसे आगे रख के चलना है. ओके, दिस प्रिंसिपल सजेस्टेड दैट. Next is remuneration. Remuneration means, as we know that remuneration means the salary or wages, the amount which is paid for the services of the employees. तो उसको remuneration कहा जाता है. ठीक है, so the remuneration payable to the workers that must be fair, reasonable and satisfactory both to the employees as well as the employer. एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से फेयर होना चाहिए, जस्टिफाइड होना चाहिए एंड रिजनेबल होना चाहिए. ओके, नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन. ओके, सेंट्रलाइजेशन, व्हाट इज सेंट्रलाइजेशन? सेंट्रलाइजेशन मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन फ्यू हैंड्स. ओके, और कंसंट्रेशन ऑफ पावर विद द हैंड ऑफ ए ग्रुप ऑफ पीपल. कुछ लोगों के हाथ में जब पावर रहता है, दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रलाइजेशन. सो व्हाट फेयोल हैज सजेस्टेड, हेनरी फेयोल हैज सजेस्टेड दैट एवरीथिंग दैट इंक्रीजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ सबऑर्डिनेट्स रोल इज डिसेंट्रलाइजेशन. सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन दोनों के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं. जैसे क्या चीज एम्प्लॉइज के कॉन्फिडेंस को, एम्प्लॉइज के रोल को बढ़ाता है, दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन. डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, हर एक के पास जो पावर है, ऑथोरिटी है. ओके, सो वो लोग भी अपना ओपिनियन, जैसे एम्प्लॉइज कैन ऑल्सो गिव देयर ओन ओपिनियन. ठीक है, यहाँ पे एक पर्टिकुलर कुछ लोगों के हाथ में पावर नहीं होता है, डिसीजन मेकिंग पावर. सो वर्कर्स आर ऑल्सो बीइंग इन्वॉल्व इन दैट. सो दे आर थिंकिंग वी आर ऑल्सो ए पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड वी आर इम्पोर्टेंट टू. सो दैट इंक्रीजेस देयर इम्पोर्टेंस और रोल. एंड what reduces their importance, that is centralization. Centralization reduces that their authority or their importance, their role in the organization. So इसीलिए centralization को ज़्यादा focus नहीं किया गया है, as it reduces the role of the subordinate. Okay, he has focused that there should be a balance between centralization and decentralization. दोनों के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए. मीन्स कभी सेंट्रलाइजेशन रेफर कर रहे हैं तो कभी डिसेंट्रलाइज्ड भी होना चाहिए. मीन्स समटाइम्स इन सम इशू, सम ऑफ द केसेस which is relating to the interest of the employees should be given a chance to participate in that.